Assalamu alaikum. Welcome to Factual Point. My name is Muzaffar Sultan. We are going to be looking at different types of nouns as well as what they are used for. This will give you the confidence in using them as well as increasing your understanding of English grammar. What is noun? Noun क्या है? A noun is a word used to describe or giving name to a person, place, thing or idea. It is the most valuable part of speech in English language. Noun क्या है? Noun एक ऐसे लफ्ज़ को कहते हैं जो किसी भी शख्स, चीज़ या जगह को बयान करने या उसको कोई नाम देने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कोई भी नाम नाउन कहलाता है. Why are nouns important? Nouns are arguably the most important part of speech in English. Nouns make up essentially all of the subjects, people, and ideas that surround us in our everyday lives. Without nouns, we could not be able to communicate effectively with those around us. Noun अहम क्यों हैं? Noun बेशक बहुत अहम पार्ट ऑफ स्पीच है. हमारे इर्द गिर्द जो भी लोग हैं, चीज़ें हैं या आइडियाज़ हैं, उन सब की पहचान हमें नाउन के ज़रिए ही होती है. बग़ैर नाउन के हम आपस में मुकम्मल समझ बूझ कर बातचीत भी नहीं कर सकते. तो फिर चलें नाउन की कुछ टाइप्स को समझने की कोशिश करते हैं. कंक्रीट नाउन्स. कंक्रीट नाउन्स आर पीपल, प्लेसेस और थिंग्स we can experience with our five senses: taste, touch, sight, hearing or smell. They are tangible, unlike ideas or thoughts, which are abstract nouns. They can be singular, plural, and proper or improper. If you are unsure if a word is a concrete noun, ask yourself the following question: can you touch it? Can you hold it? Can you see it? Is it tangible? Can you smell it? कंक्रीट नाउन के ज़रिए हम लोगों, जगहों और उन चीज़ों की पहचान कर सकते हैं जिनको हम अपने 5 सेंसेस के ज़रिए महसूस कर सकते हैं, जैसा कि टच, स्मेल, हेयरिंग, टेस्ट और साइट. वो किसी सोच या नज़रिए की तरह नहीं होते, बल्कि हकीकत में भी वजूद रखते हैं. वो सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं, प्रॉपर भी हो सकते हैं, इम्प्रॉपर भी हो सकते हैं. और अगर आपको कंक्रीट नाउन के बारे में मुकम्मल तौर पे कंफर्म ना हो, तो आपने अपने आप से सवाल करना है कि क्या आप इसे टच कर सकते हैं, क्या आप इसे देख सकते हैं, क्या ये कोई वजूद रखता है या नहीं रखता, क्या आप इसे सूंघ सकते हैं. तो चलें कंक्रीट नाउन की कुछ मिसालें देखते हैं. पहली मिसाल है केक, फिर गोट, स्मोक, लाइट, फायर, बुक, अम्ब्रेला, ब्रदर और ऑक्सीजन. डियर स्टूडेंट्स, हम कंक्रीट नाउन्स को कॉमन नाउन्स और प्रॉपर नाउन्स में तकसीम कर सकते हैं. तो चलें कॉमन नाउन्स को चेक करते हैं. कॉमन नाउन्स. Common nouns are the opposites of the proper nouns. It is not anything, person or place in particular. They do not need to be capitalized unless they are the first word of a sentence. Common noun. Common noun proper noun के opposite को कहा जाता है. ये कोई ख़ास चीज़, जगह या शख्स नहीं होते. ये आम नामों के लिए इस्तेमाल होता है और इंग्लिश में कॉमन नाउन्स के शुरू में कैपिटल लेटर नहीं लगाया जाता जब तक ये किसी भी जुमले के शुरू में ना आए. कॉमन नाउन की कुछ मिसालें ये हैं: वमेन, कार, रेस्टोरेंट, हाउस, बिल्डिंग, गर्ल, बॉय, कज़न, चेयर. प्रॉपर नाउन. A proper noun is any noun that refers to a specific thing, person, organization, corporation, team or place. Proper nouns are to always be capitalized, whether or not they are used at the beginning of a sentence. Dear students, किसी भी खास चीज़, शख्स, जगह, ऑर्गेनाइजेशन, टीम के नामों के लिए हम प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल करते हैं. प्रॉपर नाउन को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं, चाहे वो जुमले के शुरू में आए या बाद में.
प्रॉपर नाउन की कुछ एग्जांपल ये हैं: सारा, टोयोटा, मैकडोनल्ड्स, गूगल, इमरान, विलियम, नाइकी वगैरह। Abstract nouns. Abstract nouns are unlike concrete nouns. Abstract nouns refer to abstract objects such as ideas, thoughts, or concepts that cannot be seen, felt, or held. They can be experienced or directed towards someone or something. However, they are not tangible. They include qualities that we cannot taste, feel, see, or smell. If you are unsure if a word is an abstract noun, ask yourself the following questions. Can you touch it? Can you hold it? Can you see it? Is it tangible? Can you smell it? Is it something that is formulated in the mind or heart? Is it an emotion? Dear students, abstract nouns concrete nouns की तरह बिल्कुल नहीं होते। ये उन चीज़ों के बारे में बताते हैं जिनका कोई हकीकी वजूद नहीं होता, जैसा कि हमारे ख्यालात, जज्बात, सोच या फिर नज़रियात वगैरह, जिनको हम देख नहीं सकते न छू सकते हैं। इनको सिर्फ एक्सपीरियंस किया जा सकता है या किसी को बताया जा सकता है, क्योंकि हम इनको टच नहीं कर सकते, ना ही इनको सूंघ सकते हैं और ना ही चख सकते हैं, ना सुन सकते हैं। यानी हम अपने 5 सेंसेस के थ्रू इनको नहीं महसूस कर सकते। इसकी कुछ मिसालें यूँ हैं: लव, हेट, फेयर, जॉय, डिप्रेशन, सैडनेस, सिंपैथी, एक्साइटमेंट, फ्रीडम वगैरह। कलेक्टिव नाउन्स. Collective nouns are a specific group of nouns that refer to groups that are made up of more than one individual or item. Dear students, collective noun में कोई भी noun जब कोई खास ग्रुप बन जाते हैं या फिर एक से ज़्यादा अफराद या चीज़ों पर मुश्तमिल होते हैं तो हम उनको collective noun कहते हैं। For example, tribe, family, team, flock, bouquet, forest, herd. Compound nouns. The majority of English compound nouns include phrases that are composed of a noun, modified adjective, or another noun. They ordinarily are made up of more than 2 other words that can be constructed by joining 2 words at one time. Combining mother, in, and law, for example, can result in the compound mother-in-law. डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश में ज़्यादातर कंपाउंड नाउन्स फ्रेजेस पर मुश्तमिल होते हैं जो कि नाउन और एडजेक्टिव से मिलकर बनते हैं, जो कि आम तौर पर 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज को मिलाकर बनते हैं, जैसा कि मदर नाउन के साथ इन और ला को मिलाकर लिखने से मदर इन ला एक कंपाउंड नाउन बन गया है। तो कंपाउंड नाउन की कुछ एग्जांपल्स चेक कर लेते हैं। पहली हमारे पास जो लिस्ट है एग्जांपल्स की वो हाइफिनेटेड एग्जांपल्स हैं। इसमें है जी डॉटर इन लॉ, लॉन्ग टर्म, मदर इन लॉ, अप टू डेट, चेक इन, साइन इन, 47, टू फोल्ड, नॉन टॉक्सिक। इसके अलावा हमारे पास नॉन हाइफिनेटेड एग्जांपल्स भी हैं। टूथपेस्ट, आइसक्रीम, सनफ्लावर, बैकड्रॉप, ब्लूबेरी, एयरपोर्ट, कार्ड व्हील, फायरफ्लाई, एयरप्लेन, पे चेक वगैरह। काउंटेबल नाउन्स. Countable nouns are simply nouns that have the ability to become plural and be counted. Singularly, they will most likely be preceded by the words a or an. The vast majority of nouns in the English language fall into the classification of countable nouns. Dear students, काउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिनको हम प्लूरल के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उनकी गिनती भी कर सकते हैं। जब वो सिंगुलर होते हैं तो उनके साथ ए या एन लगाया जा सकता है। इंग्लिश ज़बान में ज़्यादातर नाउन काउंटेबल नाउन ही होते हैं। तो इनकी कुछ मिसालें हैं: एनिमल्स, पीपल, हाउसेस, टॉयज, विंडोज़, ईयर्स, क्लॉथ्स, कार्स, flowers, etc. Uncountable nouns.
Uncountable nouns are simply nouns that do not have the ability to become plural or to be counted. Uncountable nouns वो nouns होते हैं जिनको हम plural नहीं बना सकते और ना ही उनको गिना जा सकता है. For example, furniture, milk, water, rain, light, stress, anger, sand, music, love, etc. डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में इतना ही. आज की इस वीडियो में हमने नाउन और उसकी टाइप्स को सीखा है. इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम प्रोनाउन और उसकी टाइप्स को सीखेंगे. मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरीके से आपको सही समझ आ रही होगी. इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों से लाजमी शेयर कीजिएगा. तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.